We are going to practice more than 2000 sentences today. So, let's get started. I just need your attention, everyone. I don't need anything. Just pay attention over here. Listen to me carefully. Keep translating with me. Just try to put your 100% efforts and prove yourself कि yes, you can. So, let's get started. मुझे नहीं पता आप क्या जानते हैं. Come on. I don't know. आप क्या जानते हैं? What you know. क्या आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? Are you listening? जो मैं बोल रहा हूं. What I am speaking. एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ बोलो, लाउडली बोलो. क्या आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? Are you listening what I am speaking? मैं नहीं सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो. मैं नहीं सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो. मैं नहीं सुन रहा हूं मतलब I am not listening. Come on, I am not listening. Come on, I am not listening. जो आप बोल रहे हो. What you are speaking. What you are speaking. आपको बोलना पड़ेगा. You will have to speak. आपको यहां आना पड़ेगा. You will have to come here. आपको यहां आना पड़ेगा. You will have to come here. आप यहां आया करते थे. You used to come here. जब आप कोई काम किया करते थे. You used to come here. आप इंग्लिश बोला करते थे. You used to speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I would like to speak English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था. I was teaching English. जब आप आए मैं कुछ कर रहा था. Come on. जब आप आए मैं कुछ कर रहा था. When you came, I was doing something. मैं नहीं बता सकता मैं क्या कर रहा था लेकिन मैं कुछ कर रहा था. I can't tell you what I was doing, but I was doing something. मैं नहीं बता सकता मैं क्या कर रहा था. I can't tell you what I was doing, but I'm sure I was doing something. मुझे पक्का विश्वास में कुछ कर रहा था. क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्या कर रहे थे? Can you tell me what you were doing? याद रखना what के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्या कर रहे थे? Can you tell me? Come on. Can you tell me? Come on. Can you tell me? आप क्या कर रहे थे? What you were doing. What you were doing. रवि एक ऐसा लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं. Come on. Ravi is such a boy. Come on. Ravi is such a boy. Ravi is such a boy. Such a boy. Such a boy. Such के लिए क्यों? ऐसा के लिए लगा है. Ravi is such a boy that उसे सभी पसंद करते हैं. Everyone likes him. Everyone likes him. ये बैग इतना भारी है कि अब इसे उठा नहीं सकते. क्या कहेंगे? So that में बनेगा. This bag is so heavy that you can't lift it. या फिर आपके पास एक ऑप्शन 2 वाला भी होता है. क्या लिखोगे? This bag is too heavy. Come on, too heavy to lift. एक बार बोल कर देखो. This bag is too heavy to lift. मौसम इतना बेकार है कि बाहर नहीं जा सकते. The weather is too bad to go outside. और you can say the weather is so bad that you cannot go outside. मतलब to को आप replace so that से भी कर सकते हैं. या तो रवि ने या फिर सोहन ने इस काम को किया है. या तो रवि ने या फिर सोहन ने इस काम को किया. क्या कहेंगे? Either रवि or सोहन. Come on. Either रवि or सोहन has done this work. Has done आएगा. Has done this work. अगर मैंने कहा ना तो रवि ने ना ही सोहन ने इस काम को किया है. दोनों में ना तो लगाया मैंने तो neither रवि nor सोहन has done this work. ठीक है. ना तो रवि ने ना ही सोहन ने इस काम को किया है. तुम ना तो इंग्लिश बोलते हो ना ही हिंदी. You speak neither हिंदी nor English. You speak neither हिंदी nor English. क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready to speak? क्या आप बोलना चाहते हो? Do you want to speak? क्या वहां जाना चाहते हो? Do you want to go there? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखने पसंद है. I'm learning English because I like to learn English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. I'm speaking English because I like to speak English. आप इंग्लिश कैसे बोलते हो? How do you speak English? आप यहाँ कैसे आते हो? How do you come here? आप वहाँ कैसे जाओगे? How will you go there? आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आप वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? बोलो. Why are you going there? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? क्या कहेंगे? बोलो. Why are you teaching English? एक एक सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली बोलो. आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching English? क्या ये आपका है?
इज दिस योर्स? एक बार बोलो मेरे साथ, जुड़ के बोलो, क्या ये आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? यदि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए. इफ आई कैन हेल्प यू सो यू शुड हेल्प मी. यदि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आपको भी मेरे साथ इंग्लिश बोलनी चाहिए. इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश सो यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी. मैं आपके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता. क्या कहोगे? मैं आपके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता. आई कांट स्पीक इंग्लिश विथ यू. एक बार फिर से बोलो, मैं आपके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता. आई कांट स्पीक इंग्लिश विथ यू. मैं आपके साथ वहां नहीं जा सकता. आई कांट गो देयर विथ यू. मैं आपके साथ वहां जाना चाहूंगा. क्या कहोगे? मैं आपके साथ वहां जाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू, कम ऑन, आई वुड लाइक टू गो देयर विथ यू. एक बार फिर से बोलो, मैं आपके साथ वहां जाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गो देयर विथ यू. अभी आप कहां हो? वेयर आर यू नाउ? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? आप यहां क्यों आ रहे हो? वाई आर यू कमिंग हियर? आप यहां क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर? क्या यह आपका है? बताइए मुझे, क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? टेल मी. क्या यह आपका है? बताइए मुझे. इज दिस योर्स? टेल मी. आप ये भी कह सकते हो, टेल मी इज दिस योर्स? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा भाई का है. नो, दिस इज नॉट माइन, दिस इज माई ब्रदर्स. आपका भाई कहाँ है? वेयर इज योर ब्रदर? मेरा भाई 2 साल से इंदौर में है. बोलो, मेरा भाई 2 साल से इंदौर में है. माई ब्रदर, कम ऑन, एक बार बोलो सारे स्टूडेंट. माई ब्रदर हैज बीन इन इंदौर फॉर 2 years. एक बार बोलो सारे स्टूडेंट्स. माई ब्रदर हैज बीन इन इंदौर फॉर 2 years. मैं 2 साल से इंदौर में हूं. आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years. मैं 2 साल से अपनी फैमिली के साथ हूं. आई हैव बीन विथ माई फैमिली फॉर 2 years. मैं यहां सुबह से हूं. आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. मैं यहां 2 घंटे से हूं. आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours. एक बार बोलो मेरे साथ, मैं यहां 2 घंटे से हूं. आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours. आपको वहां जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए. क्या कहेंगे? यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम. एक बार फिर से बोलो, तुम्हें वहां जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए. यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम. मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता. बोलो, मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू, कम ऑन, आई डोंट वॉन्ट टू, कम ऑन, आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प हिम. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. बताइए कैसे सीख सकता हूं? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. टेल मी हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आप इस काम को 2 दिन में कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? फिर से बोलो, आप इस काम को 2 दिन में कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क? 2 दिन में का इंग्लिश क्या होगा? जरा बोलो तो सभी. विद इन 2 days. एक बार बोलो मेरे साथ, बोलने से होगा दोस्त. हाउ विल यू स्पीक, हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? करोगे इसलिए विल. अगर मैंने कहा आपने इस काम को 2 दिन में कैसे किया, तो हाउ डिड यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? आप इस काम को 2 दिन में कैसे पूरा करते हो तो डू. हाउ डू यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? आप इस काम को 2 दिन में कैसे पूरा कर सकते हो, तो यहां कहने लग जाएगा हाउ कैन यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? मेरे पास कुछ ऐसी यूनिक स्किल्स हैं जिनकी मदद से मैं इस काम को 2 दिन में कर सकता हूं. आई हैव गॉट सम यूनिक स्किल्स with which I can do this work within 2 days. मुझे बताइए वो स्किल्स क्या है? Tell me what are the skills जिनकी मदद से आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हो. With which you can do this work within 2 days. Or you can say with the help of those skills you can do this work within 2 days. मैं उन स्किल्स के बारे में जानना चाहता हूं. I want to know about those skills. मैं उन स्किल्स के बारे में, I want to know about those skills. उन स्किल्स के बारे में जानना चाहता हूं. आप क्या कर रहे हो अभी? What are you doing now? मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं. I'm learning English now. मैं इंग्लिश सीखता हूं. I learn English. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. I teach English. मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है. I have to teach English. आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए. यू शुड टीच इंग्लिश. आपको यहाँ आना चाहिए. यू शुड कम हियर. मैं आने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू कम हियर. मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू गो देयर. अब वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? अब वहाँ कैसे गए? हाउ डिड यू गो देयर? आप यहाँ कब आए? व्हेन डिड यू कम हियर? आप यहाँ क्यों आओगे? वाई विल यू कम हियर?
क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक? क्या आपको बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक? आप कैसे बोल रहे हो? हाउ आर यू स्पीकिंग? आपने क्या बोला? व्हाट डिड यू स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? मैं सब कुछ बोल सकता हूं जो आप सुन रहे हो। आई कैन स्पीक एवरीथिंग व्हाट यू आर लिसनिंग। आपको इस विषय पर सोचना चाहिए। यू शुड थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे कुछ नया सीखना है, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। आप क्या सीखना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू लर्न? व्हाट डू यू वांट टू लर्न? कम ऑन, व्हाट डू यू वांट टू लर्न? एक एक स्टूडेंट्स को डंके की चोट पर बोलना है। अभी प्रैक्टिस तो स्टार्ट हुई है, अभी तो मैंने शुरू किया है ना? ये तो वार्म अप था, अब करते हैं ओरिजिनल प्रैक्टिस। तो मैंने कहा करो जो आप करना चाहते हो। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। कम ऑन, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। करो जो आप करना चाहते हो। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। आई डिड द सेम, आई डिड एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू डू। मैंने वही किया। आई डिड द सेम या आई डिड एग्जैक्टली द सेम व्हाट आई वांटेड टू डू। व्हाट आई वांटेड टू डू है दैट आई वांटेड टू डू। जो मैं करना चाहता था, दैट आई वांटेड टू डू। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार बोलो फिर से, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं समझता हूं सब कुछ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ समझता हूं लेकिन बोलता नहीं हूं। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट आई डोंट स्पीक। क्या आप सब कुछ बोल सकते हो? कैन यू स्पीक एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग एवरीथिंग? हाँ, मैं सब कुछ कर रहा हूं। यस, आई एम डूइंग एवरीथिंग। मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इस काम को 2 दिन में करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। एक बार फिर से बोलो, मुझे इस काम को 2 दिन में करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। कम ऑन, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। मुझे इस काम को 2 दिन में करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। मुझे 10 बजे वहां पहुंचना है, आई हैव टू रीच देयर एट 10 o'clock। बोलो सभी, मुझे वहां 10 बजे पहुंचना है, आई हैव टू रीच देयर एट 10 o'clock। आप वहां जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ काम है आपको? वाई आर यू गोइंग देयर सो अर्ली? डू यू हैव एनी वर्क? आप वहां जल्दी क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर अर्ली? अर्ली का मतलब जल्दी होता है। क्या आपको कुछ काम है? डू यू हैव एनी वर्क? हाँ जी, मुझे कुछ काम है इसीलिए तो मैं जल्दी जा रहा हूं। यस, आई हैव सम वर्क दैट्स व्हाई आई एम गोइंग सो अर्ली। मुझे कोई जल्दी जाने का वहां शौक नहीं है। आई डोंट लाइक टू गो देयर अर्ली, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर अर्ली। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। आई हैव सम वर्क दैट्स व्हाई आई एम गोइंग सो अर्ली। आप इतना क्यों सोचते हो यार? वाई डू थिंक सो मच? आपको नहीं सोचना चाहिए ज्यादा। यू शुड नॉट थिंक मच। आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसीलिए आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हो। यू ओवर थिंक। यू ओवर थिंक का मतलब होता है आप ज्यादा सोचते हो। यू ओवर थिंक, दैट्स वाई यू आर अनेबल टू वर्क प्रोडक्टिवली। That's why you are unable to work productively. That's why you are unable to do productive work, we can say. Right? आपको ज्यादा सोचना बंद करना चाहिए। You should stop overthinking. बोलो, you should stop overthinking. आपको ज्यादा सोचना बंद करना चाहिए, तो you should stop. बंद करने के लिए कौन सी वर्ब लगाओगे? Stop. क्या करना बंद करना चाहिए? Overthinking में ing लगेगा। Overthinking. आपको ज्यादा खाना बंद करना चाहिए। You should stop overeating. आपको ओवर रिएक्ट करना बंद करना चाहिए। यू शुड स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। ओवर रिएक्टिंग, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर रिएक्टिंग, है ना? ये सब वर्ब है आपके। ओवर थिंक ज्यादा सोचना, ओवर रिएक्ट ज्यादा रिएक्ट करना, ओवर ईटिंग ज्यादा खाना, तो ये वर्ब्स है आपके। इनमें सब में आईएनजी लगा रहा है। आपको सोचना बंद करना चाहिए। यू शुड स्टॉप थिंकिंग। आपको बोलना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए अब, क्योंकि आपकी एग्जाम्स आने वाली है। क्या कहेंगे? यू शुड स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम। क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? नाउ मुझे सुनना है। आई हैव टू लिसन। वो कौन है? हु इज ही? बुलाओ उसे जो वहां खड़ा हुआ है। कॉल हिम हु इज स्टैंडिंग देयर। मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां बैठा हुआ है। मैं उस लड़के को जानता हूं। क्या कहोगे? आई नो द बॉय। आई नो द बॉय
जो वहां बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग देयर। फिर से बोलो, हु इज सिटिंग देयर। ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां बैठा हुआ। आई नो द बॉय हु इज सिटिंग देयर। मैं उस लड़की को जानता हूं, मैं उस लड़की को जानता हूं जो रवि के साथ कॉलेज जा रही है। आई नो द गर्ल हु इज गोइंग टू कॉलेज विद रवि। आई नो द गर्ल हु इज गोइंग टू कॉलेज विद रवि। क्या आप उस लड़के को जानते हो जो रवि के साथ है? क्या कहेंगे? क्या आप उस लड़के को जानते हो जो रवि के साथ है? डू यू नो द बॉय हु इज विथ रवि? एक बार बोलो तो मेरे साथ, क्या आप उस लड़के को जानते हो जो रवि के साथ है? डू यू नो द बॉय हु इज विथ रवि? हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूं जो रवि के साथ है। यस, आई नो द बॉय हु इज विथ रवि। यदि आप जानते हो उस लड़के को जो रवि के साथ है तो मुझे उसका नाम बताइए। इफ यू नो द बॉय हु इज विथ रवि, प्लीज टेल मी हिज नेम। उसका नाम किशन है और वो मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट है। हिज नेम इज किशन एंड ही इज द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। मुझे याद है कि वो मेरे कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है। आई रिमेंबर ही हैज बीन स्टडिंग इन माई कॉलेज फॉर 2 years। वो हमारे कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट है और बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट है। ही हैज बीन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज एंड ही इज सच ए स्टूडियस स्टूडेंट। स्टूडियस कह सकते हो, मेरिटोरियस कह सकते हो। मेरिटोरियस एंड स्टूडियस दोनों का मतलब होता है पढ़ाकू टाइप के। ऐसे बच्चे जो है ना मेरिट में आते हो, ऐसे बच्चे जो पढ़ाकू हो, स्टूडियस हो, है ना। ओके, आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक। क्या आप बोलते हैं जो मैं सोचता हूं? डू यू स्पीक व्हाट आई थिंक? मैं ज्यादा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक मच। क्या आपको सोचना चाहिए? शुड यू थिंक? क्या मुझे ज्यादा सोचना चाहिए? शुड आई ओवर थिंक? और यू कैन से शुड आई थिंक मच? आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक मच। आपको ज्यादा बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक मच। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट। आप क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश? है ना। सो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश? ठीक है, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश? आप मार्केट क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? आप मार्केट कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट अपने दोस्तों के साथ जाता हूं। आई गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स। मुझे पढ़ाई करनी है। आई हैव टू स्टडी। मुझे कुछ नया सीखना है। आई हैव टू लर्न समथिंग। मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। मुझे अपनी क्वालिटीज बढ़ानी है। आई हैव टू इंप्रूव माई क्वालिटीज। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। यू आर नॉट, कम ऑन, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। दैट्स नॉट गुड। दैट्स नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड थिंग। आपको मुझे बोलने देना चाहिए। यू शुड लेट मी स्पीक। आपको मुझे जाने देना चाहिए क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। यू शुड लेट मी गो बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जाने दूं। आप मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जाने दूं। यू आर माई फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं, दैट डजंट मीन, दैट डज नॉट मीन, या दिस डजंट मीन भी बोल सकते हो, इट डजंट मीन भी बोल सकते हो, दैट डजंट मीन भी बोल सकते हो। दैट डजंट मीन मैं आपको जाने दूं। आई लेट यू गो या आई विल लेट यू गो। ठीक है, मैं आपको बिना परमिशन के नहीं जाने दे सकता। आई कांट लेट यू गो विदाउट परमिशन। भले ही आप मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं आपको बिना परमिशन के नहीं जाने दे सकता। ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड्स बट आई कैन नॉट लेट यू गो विदाउट परमिशन। इवन दो यू आर माई फ्रेंड्स आई कांट लेट यू गो विदाउट परमिशन। पहले आपको परमिशन लेनी होगी अपने पेरेंट्स से, फिर मैं आपको जाने दूंगा। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, देन आई विल लेट यू गो। अभी आप कहाँ हो? वेयर आर यू नाउ? मैं अभी कोचिंग पर हूं। आई एम एट द कोचिंग नाउ। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूं। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। सर मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं? सर आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, टेल मी व्हाट आई कैन। सर मुझे अपनी क्वालिटीज बढ़ानी है। सर आई हैव टू इंप्रूव माई क्वालिटीज। सर मुझे ना कुछ अचीव करना है। सर आई हैव टू अचीव समथिंग। सर मुझे मेरे जीवन में कुछ हासिल करना है। सर आई हैव टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। सी एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ वांट्स टू अचीव समथिंग। लेकिन कुछ हासिल करने के लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। बट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू पुट 100% एफर्ट्स। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू वर्क हार्ड? हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। यस आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश।
मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंप्रूव करें, आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर सेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को 2 दिन में पूरा करें, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। मैं चाहता हूं कि इस काम को आप 2 दिन में पूरा करें। क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं, किससे चाहता हूं? आपसे चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क। क्या कहोगे? आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क 2 दिन में का इंग्लिश होगा विद इन 2 days। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। मुझे जाना है। क्या कहोगे? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी है। आई हैव टू स्टडी। आई हैव टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं यहां आना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कम हियर। मुझे आना पड़ता है। आई हैव टू कम। मुझे वहां जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर। अब वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? मैं वहां जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू गो देयर बट आई हैव टू गो देयर। सुनिए क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। लिसन बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग। आप सुन क्यों नहीं रहे हो? वाई आर यू नॉट लिसनिंग? मैं सुन नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे सुनना पसंद नहीं है। आई एम नॉट लिसनिंग बिकॉज आई डोंट लाइक टू लिसन। मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है। आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज आई डोंट लाइक टू स्पीक। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। कम ऑन, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सब कुछ आसान है। एवरीथिंग इज ईजी। आप सब कुछ कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। आपकी विल पावर जो है ना, आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड हैव ए स्ट्रांग विल पावर। यू शुड हैव अ स्ट्रांग विल पावर। अगर कुछ करना है ना तो मजबूत इच्छा शक्ति रखो। इफ यू हैव टू डू समथिंग, हैव अ स्ट्रांग विल पावर। मजबूत इच्छा शक्ति रखो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैव स्ट्रांग विल पावर। हैव स्ट्रांग विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। अगर कुछ हासिल करना है तो मजबूत इच्छा शक्ति रखो। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग, हैव स्ट्रांग विल पावर। अगर कुछ बोलना है तो पहले सुनो। इफ यू हैव टू स्पीक समथिंग, फर्स्ट लिसन। अगर कुछ हासिल करना है तो पहले समझो। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग, फर्स्ट लिसन, फर्स्ट अंडरस्टैंड। बिना समझे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गेटिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आप सुनते नहीं हो इसलिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है। यू डोंट लिसन, दैट्स व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर आप ध्यान से सुनो ना तो आप कठिन से कठिन चीज को भी समझ सकते हो। इफ यू लिसन केयरफुली, यू कैन लर्न द टफेस्ट थिंग्स इवन। कठिन से कठिन को क्या कहेंगे? टफेस्ट। टफ में EST लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। यू कैन लर्न द टफेस्ट थिंग इवन। कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज टफ। चीजें टफ इसलिए है क्योंकि हमने टफ बना दिया है। थिंग्स आर टफ बिकॉज वी हैव मेड देम टफ। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है सीखने के लिए। ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, देयर इज नथिंग टफ टू लर्न। अगर आपको लगता है कि आप ये सीख सकते हो तो आप सीख सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट। अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। अगर आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर सकते हो तो आप कर सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन अचीव समथिंग, यू कैन अचीव। मेरे साथ जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ। मैं जो बोल रहा हूं उसको बोलो, है ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको बोलो। मेरे साथ पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ। कौन क्या कर रहा है घर में, सारा सब कुछ भूल के जुड़ जाओ। जो मुझसे जुड़ गया वो मेरा हो गया। मैंने कहा वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो आएगा, ही विल कम। मैं जानता हूं वो पक्का है, वो आएगा। आई नो ही विल श्योरली कम। जब पक्का श्योरिटी की बात करते हो तो श्योरली लगाते हो, डेफिनेटली लगाते हो, है ना, सर्टेनली लगाते हो। इस तरीके से ये वर्ड याद रखो, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली। मैंने पूरे लिखे नहीं है, अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ लेते हैं। सर्टेन लिखो, उसमें एलवाई, सर्टेनली, श्योरली, और एक वर्ड होता है डेफिनेटली। डेफिनेट लिखकर उसमें एलवाई लगा दो। वो निश्चित ही आएगा, ही विल श्योरली कम हियर। मैं जानता हूं निश्चित ही तुम पास होगे। आई नो यू विल श्योरली सक्सीड। आई नो यू विल श्योरली पास। क्योंकि आप एक मेहनती स्टूडेंट, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। और एक मेहनती स्टूडेंट के लिए पता है इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। एंड डू यू नो, फॉर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट ऑन दिस अर्थ। और आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपकी मेहनत। एंड यू हैव द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज योर हार्ड वर्क। इसलिए आपको कोई सफल होने से रोक ही नहीं सकता यार। सो नो वन कैन स्टॉप यू टू सक्सीड। आप तो पैदा ही हुए हो सफल होने के लिए। यू आर बॉर्न टू सक्सीड। आप तो पैदा ही हुए हो कुछ नया करने के लिए। यू आर बॉर्न टू डू समथिंग न्यू।
आप तो पैदा ही हुए हो कुछ नया पढ़ाने के लिए। यू आर बॉर्न टू टीच समथिंग न्यू। और आपको लगता है कि सर आप तो पैदा ही हुए हो इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो कमेंट में लिखो सर यू आर बॉर्न टू टीच इंग्लिश। ओके, कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज टफ। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको मेरे साथ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक विथ मी। आपको मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक विथ मी। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक विथ मी, दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू स्पीक। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू ट्राई। आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। मैं इस काम को 10 दिन में नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस वर्क विद इन 10 days। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मैं पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच। मैं बोलना चाहूंगा, कम ऑन, मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। क्या आप बोलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक? क्या वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या ये आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप समझते हो जो मैं बोलता हूं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक? क्या आप वहां जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या आप यहां आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम हियर? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? आप कहां हो? वेयर आर यू? आप कहां थे? वेयर वर यू? आप 2 दिन से कहां हो? वेयर हैव यू बीन फॉर 2 days? मैं 2 दिन से अपने घर पर हूं। आई हैव बीन एट माई होम फॉर 2 days। क्या आप उसे जानते हो जिसे मैं जानता हूं? डू यू नो द वन हुम आई नो? मैं उसे नहीं जानता जिसे आप जानते, लेकिन जिसे मैं जानता हूं उसे आप नहीं जानते। आई डोंट नो द वन हुम यू नो, बट आई नो द वन हुम यू डोंट नो। आप कौन है? हु आर यू? आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो? आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू सी? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गार्डन में कितने पौधे हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दिस गार्डन? मुझे नहीं पता इस गार्डन में कितने पौधे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दिस गार्डन। मैंने कभी गिनने की कोशिश नहीं करी। आई नेवर ट्राइड। आई हैव नेवर ट्राइड टू काउंट द प्लांट्स। अरे आप इस गार्डन के माली हो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस गार्डन में कितने पौधे हैं। यू आर द गार्डनर ऑफ दिस गार्डन, सो यू आर सपोज टू नो हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दिस गार्डन। वो सही है कि मैं माली हूं इस गार्डन का, लेकिन मैंने कभी गिनने की कोशिश नहीं करी। दैट्स राइट दैट आई हैव बीन द गार्डनर ऑफ दिस गार्डन। You can say I am the gardener of this garden, but I have never tried to count. I have never tried to count. I have never tried to count. Okay? इसलिए मुझे पता नहीं, that's why I don't know. क्या आप मुझे बताएंगे रवि का घर कहाँ है इस शहर में? Will you tell me where Ravi's house in this city? देखिए मैं रवि को नहीं जानता हूं, बट आपको मिस्टर शर्मा जो है वो बता देंगे रवि का घर इस शहर में कहाँ है। See, I don't know Ravi, but I'm sure Mr. Sharma he knows Ravi and he can surely tell you where is Ravi's house. आपको मिस्टर शर्मा से मिलना चाहिए। You should meet Mr. Sharma. वो आपको बताएंगे रवि का घर कहाँ है। He will tell you where is Ravi's house. So anything, जो भी दिमाग में आता है, whatever comes in your mind, जो भी आपके दिमाग में है, just try to translate. और स्टूडेंट एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना आज, सारे के सारे स्टूडेंट्स, the more you practice, the more you learn. It's all about your practice. आपकी जितनी शानदार, जानदार, धमाकेदार, इफेक्टिवली एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रैक्टिस होगी, उतना शानदार, धमाकेदार, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो योर रिजल्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मोर, यू आर श्योरली गोइंग टू लर्न मोर। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, स्टार्ट थिंकिंग। आज से और अभी से जब घर पर टहल रहे हो तो इंग्लिश में सोचो। नाउ आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, बट समटाइम्स आई मेक मिस्टेक। अपने ब्रेन के अंदर जो डाटा है ना, अच्छा मुझे एक बात सब बताओ आज, डोंट यू थिंक, डू यू थिंक और नॉट? लेट मी नो। अब बोलोगे हाँ सर सोचते तो हम, तो जो सोचते हो ना उसको मातृभाषा में मत सोचो। आपने देखा है कि आप जो भी सोचते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस जो है आपके ब्रेन में नेटिव लैंग्वेज में चलती है। नेटिव में क्यों चलती है? क्योंकि आप यूज्ड टू हो अपनी मातृभाषा के बोलने के। आपको उस थॉट प्रोसेस को किस में लेकर आना है? इंग्लिश में लेकर आना है। और वो इंग्लिश में तभी आ पाएगा स्टूडेंट्स जब आप जो है एक एक सेंटेंस की वैल्यू करोगे। जब आप जो है हर वो चीज जो आपके दिमाग में आ रही, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश एंड सी द मैजिक। आज जितने भी स्टूडेंट्स इस ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू अपने आप को इंप्रूव किए हैं, उन्होंने सबने अपना 100% दिया इसमें, तब जाकर वो निखरे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आप मुझसे जुड़े हो ना, तो आई गारंटी यू आप जीवन में कभी भी इंग्लिश में तो पीछे नहीं रहोगे। इसलिए सारे सेशंस को भी तो ऑनेस्टी देखना है, ईमानदारी से देखना है, लापरवाही नहीं करना और अपना बेस्ट देना है।